Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, my God, comment section में spam कर करके इंसान का reaction. Guys, I have already told you, मैंने जब एक वीडियो में कमिटमेंट दे दिया है कि भाई पहले मैं ये वाला एल्बम करूँगी, उसके बाद मैं इंसान का एल्बम लिसनिंग whatever रिएक्शन दूंगी, तो मैं उसी सीक्वेंस में जाऊंगी. No matter how much you spam my comment section, it is not going to work like that, guys. Please try to understand. Also, like, you guys also need to chill a little, because when I've already told you that I will listen to the album, I will listen to the album. And कब आएगा आ जाएगा. I can't give a commitment कब आएगा, like seriously, because there's so many trailers dropping, there are other music videos, there are many things. Okay, there are movie reviews that I do. So yeah, I mean, you guys have to keep patient. If you are patient enough, then you are most welcome to, stay in the channel. Be subscribed to the channel. If you cannot wait also for a couple of days, then I'm really sorry, guys. That's just how the content is going to work on this channel. It's not कि आज release हुआ तो 2 घंटे बाद मेरा reaction आ जाएगा. I don't do it like that. I don't have an editor. ठीक है, मुझको घर के भी काम करने पड़ते हैं और ये भी करना पड़ता है. So, and I want a work-life balance. मतलब I have a life outside of YouTube also, guys. I've said it many times before, but मैं फिर से ये reiterate करना चाहती हूँ. So, I mean, spamming the comment section is something which is, well, I mean, I'm not a big fan of, because when I see all the comments, so many comments, I can't reply to every comment. कि हर एक comment में जब जो मांग रहा है कि हाँ ये reaction कब आएगा, मैं कब से wait कर रहा हूँ. Well, I'm really sorry, guys, to disappoint you, but I am not a people pleaser. I can't please everybody. That's the brutal truth. Yes. Moving on. Right now, I will be now listening to Insan. This is like part 1, because album में 11 गाने हैं. I don't know if Stan is, planning to release any video or not, because I'm really surprised कि उसने क्योंकि पहला गाना is called इंसान, तो I'm guessing ये टाइटल ट्रैक है, तो हर एक का ऑफिशियल ऑडियो है. I was expecting कि एटलीस्ट एक गाने का वीडियो शायद ड्रॉप होगा, क्योंकि मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो टाइटल ट्रैक होगा उसका वो वीडियो ड्रॉप करेगा, बट ही हैज ड्रॉप्ड ओनली ऑडियोज. सो देयर आर 11 सॉन्ग्स, आउट ऑफ विच इन पार्ट 1 आई विल, पहले 6 गाने आज मैंने सोच के रखा है कि 6 गाने सुनते हैं आज, बिकॉज अदरवाइज बिकम अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो. इसी में आई थिंक 1 घंटा निकल जाएगा, एटलीस्ट आधा घंटे के ऊपर तो हो ही जाएगा. दो वन सॉन्ग इज जस्ट 1 minute. लेट्स सी हाउ, if I feel that okay, I can listen to a couple of more songs, I will. Otherwise, right now we will stop at the first 6 songs, and in part 2, remaining songs. So today I will listen to Insan, Gender, Fuck Love, Bitch, How to Hate featuring Raftaar. So excited for this one. And Basti Ki Hasti. Now, जब ये album बहुत ही भयानक लेवल वाला हाइप था before the release of this album. So let's see if the hype was worth it or not. And with Stan, what I am expecting is, मेरी expectation मतलब ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है. For me, when I listen to a Stan song, for me it's like, पहली बात तो हाँ, explicit lyrics के लिए ready हो जाओ सुनने के लिए, because that's how he is. It's his style, it's him. Second is कि मुझे कुछ अलग बीट सुनना है. Whenever I'm listening to Stan, I'm expecting something different. मुझे नहीं पता मैं क्या सुनने वाली हूँ, बट कुछ अलग सुनने वाली हूँ. वो पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता, that's a different thing. And third, of course, what I was hoping is that, and let's see if it happens or not, कि जब एल्बम आने वाला था, my wish was कि I hope the album is a mix of both mumble as well as, non-mumble, actual, like normal hip-hop जो होता है, rap होता है. So I don't know if it's only mumble या proper mumble. तो definitely उसने experiment किया होगा, because he really likes doing experimentation in that field. It's a new sound that he's bringing to DHH. So that's very very interesting. तो देखते हैं. My mind is like कुछ भी हो सकता है भाई, चलो सुनते हैं. And with that note, let us begin the reaction. I will put the timestamps of every song, so आप एक बार में देख सकते हैं, या फिर आप अपने फेवरेट गाने के रिएक्शन पे डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं. ऑल्सो लेट मी नो विच वर योर टॉप 5, टॉप 3 पूरे एल्बम में से, बट अभी तो मैं 6 गाने सुनूंगी. सो लेट अस बिगिन. वाओ, the poster is so beautiful. तेरा नहीं मालूम, लेकिन मैं इंसान
कुछ लोग तो भूल गए अपन शैतान है ये इंसान। सब इंसान खुश थे उस वक्त पे जब मैं था पैसा। मैं भी एक इंसान है वो भी सेम तेरे जैसा। किसको नहीं मालूम इंसान कैसे आए इस धरती पे। तू आए इस दुनिया में पर जाएगा किसकी मर्जी से। खुदा ने भी सो जाऊंगा किसको बनाए गलती से। पहले के लोग क्यों दूर रहने के लड़की से। पहली बार जब सुना मैंने मेरे पास नहीं पैसे थे ब्रो वो टाइम पे। बजरेला में कुछ तो डिप तू फकिंग ध्यान दे। कितने लोग का घर चल रेला मेरे नाम पे। नहीं आएंगे पैर तेरे साथ मेरे आएंगी तेरी दोस्ती। मेरे को 2 गज जमीन चाहिए दफन होने के लिए ब्रो। तू बोलता झूठ लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं करता सजा तू करता गुनाह। इंसान को कुछ दिख रहा नहीं सिर्फ दिख रहे पैसे। ये पैसों के वजह से हो गए हम लोग कैसे। एक इंसान को मारता और सब लोग देख रहे। ऊपर वाले ने जबान दिया इसलिए कुछ ही बज रहे। इंसान को सिर्फ पैसे चाहिए और शायद से फेम। मैं समझा रहा था इंसान को पर जानवर ने समझा पेन। खुदा से बड़ा बनना चाहता है ब्रो क्यों तू। मैं कैसा करता ब्रो जैसे मैं ठीक हूँ। तुम पूरी जिंदगी भर ढूंढेंगे यहाँ पे कौन है रियल। तू भी एक इंसान में भी एक इंसान इसलिए होता फिर। अब सब एक एनर्जी है जिसको बोलते रूह और दिल। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के साथ में करता डील। रोता नहीं मैं रोता दिल नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी फील। दिल नहीं कर रहा मैं खा के पिल। ये तू का मत तू किसका दिल में गॉड को लेके आता फिर मैं मेरे को मिल या मौत को मिल। ये मैं लिख रहा कुछ तो डीप इसलिए तुम मेरे फैन है। मैं नहीं कर रहा कुछ ये सब गॉड प्लान है। मैं भरोसा करने का क्योंकि तू भी एक इंसान है। मैं बेचना सोल चाहता खुद को मैं टेंथ तो सियान है। इंसान को कुछ दिख रहा नहीं सिर्फ दिख रहे पैसे। ये पैसों के वजह से हो गए हम लोग कैसे। एक इंसान को मारता और सब लोग देख रहे। ऊपर वाले ने जबान दिया इसलिए कुछ ही बज रहे। इंसान को सिर्फ पैसे चाहिए और शायद से फेम। मैं समझा रहा था इंसान को पर जानवर ने समझा पेन। खुदा से बड़ा बनना चाहता है ब्रो क्यों तू। मैं कैसे करता जैसे मैं अभी ठीक हूँ। You know, like This music, oh my god, Stan as a producer. like इंसान ऐसे एक जात like fucking cloud9 I'm up there and shit। जात भी कुछ नहीं इंसान एंड ऑफ द डे इंसान So this needs a video. वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। I love this edition. I love this edition. Wow. इसको यहाँ पॉज करते हैं। मैं एनीवेज प्लेलिस्ट ऑन किया हुआ है। What an just a chef's kiss. I loved it. I am sorry. बहुत ही मतलब so different. That's what I'm saying. मैं मतलब with Stan, it's like कुछ भी हो सकता है। And I love this edition of वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। मतलब it's such an iconic line from a Bollywood song. पिया तू अब तो आजा। Love that he added that. It's fantastic. The music. मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ Stan as a producer is just absolutely phenomenal. He is phenomenal as a producer. मतलब मैं तो चाहूंगी कि इन द फ्यूचर मतलब उसके आगे तो ही सो फ्रिकिंग यंग। मतलब पूरा करियर है उसके आगे। तो एक तो वो DHH को भी बहुत आगे ले जाएगा। इट्स व्हाट आई फील। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आई वुड वांट हिम टू बी वेरी वेरी एक्टिव एज अ प्रोड्यूसर। की मतलब ठीक है अपने गाने तो कर ही रहा है प्रोड्यूस, बट आई फील maybe he should also produce for other artists as well. He as a producer is मतलब मैं तो शायद बोल के थक गई हूँ, पर मैं आगे भी बोलती रहूंगी दैट मुझे MC Stan as a producer, producer अल्ताफ maybe he can be like that as a producer का एक अलग persona और MC Stan for his hip hop persona. But I think मतलब मैं तो हमेशा बोलती रहूंगी कि Stan as a producer is my favorite part of Stan. ये गाना it actually gives you an insight of him and his growth. I feel मतलब तड़े पर बहुत ही जैसे उसमें एक पूरा स्टोरी लाइन था and it was very very raw
आई थिंक विद इंसान वॉट ही इज, पहली बात तो जब ये एल्बम का आर्टवर्क आया था मैं तो देख के ही मतलब आई वॉज सो टेकन अबैक बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली वेल मेड पोस्टर्स दैट आई सीन बिकॉज इट्स लाइक एंजल वर्सेस डेविल. एक ही इंसान के अंदर एक अच्छा साइड भी होता है और एक बुरा साइड भी होता है. सो दैट इज वॉट दिस आर्टवर्क इज सजेस्टिंग मी. देन मतलब वो बोलते हैं ना कि एक उसके बाद उसका वो जो रिब केज दिख रहा है उसका दिल उसके हाथ में है. सो ओ माई गॉड, इट वॉज जस्ट फ्रिकन अमेजिंग. एंड ये टाइटल सॉन्ग से आई फील इसका तो वीडियो होना चाहिए बिकॉज कितना कुछ उसने बोला है, कितना कुछ उसने इसमें बोला है. एंड इसका एक तो बहुत हार्ड हिटिंग वीडियो बन सकता है बिकॉज फर्स्टली ही से दैट अ पर्सन, एक इंसान जो होता है, हाउ यू नो मनी, जो एक इंसान को आजकल क्या चाहिए, आजकल तो इंसानों को शायद पैसा चाहिए, फेम चाहिए, और पैसे के लिए मतलब हम कुछ भी करने को रेडी है. ओके, लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं और बाकी लोग खड़े होकर तमाशा देखते, मतलब लिटरली फैक्ट्स ही इज सेइंग. It's just so hard hitting and I would love if Stan ever decides to make a video, at least in टाइटल ट्रैक का तो वीडियो बनाना ही चाहिए. इसका बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा. प्लस इसका जो म्यूजिक दिया है, इट इज एक वो हॉन्टिंग वाला फीलिंग होता है ना, इट्स लाइक दैट. आई फील द म्यूजिक इज वेरी वेरी हॉन्टिंग. एक आई डोंट नो, आई वाज जस्ट इमेजिनिंग जैसे ये गाना स्टार्ट हो रहा है, कैसे सनराइज हो रहा है ऑन द होराइजन एंड देन यू नो भीड़, लोग, पीपल आर जस्ट गोइंग अबाउट देयर लाइव्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन ये गाना स्टार्ट हो रहा है. अगर उसने वीडियो बनाया तो एंड आई थिंक ही ऑल्सो गिव द लिरिक्स इन द डिस्क्रिप्शन. दो यहाँ पे इवन इफ इट्स नॉट रियली, आई वुडंट रियली से, मतलब मम्बल तो नहीं कर रहा था. आई वुड, बिकॉज मुझे समझ आ रहे थे उसके, लाइक देयर आर अदर सॉन्ग्स ऑफ स्टैन जहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना पड़ता, बट यहाँ पे आई वुड स्टिल से ही, because the lyrics are really important, so I don't, he was sort of, you know, auto-tune used हुआ है, but he was not mumbling, he was talking properly only because I could hear the, like I could easily make out the lyrics, and he gave the entire lyrics here. Anyway, we'll just go through it. Most of the song is pretty direct and very hard hitting, very good lyrics. तो वही ना, कुछ लोग भूल गए अपन, हाँ कुछ लोग तो भूल गए अपन शैतान नहीं है इंसान. He's talking about himself that you know people think he's the devil but he is not. People have forgotten. सब इंसान थे खुश उस वक्त पे जब नहीं था पैसा, मैं भी एक इंसान है वो भी सेम तेरे जैसा. We are all at the end of the day, we are, इमोशंस तो यूनिवर्सल होते हैं, चाहे आप यहाँ पे बैठे हो, चाहे आप यू नो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हो. देयर आर यूनिवर्सल इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ग्रीड, एंगर, जेलसी, सो मेनी थिंग्स, राइट. आई रियली लाइक दिस लाइन. जब उसने बोला पहली बार जब सुना मैंने, वेन मेरे पास पैसे नहीं थे, लिल वेन, ही इज टॉकिंग अबाउट हिम. So I'm guessing Wayne is one of probably his inspirations. तो बजरेला कुआं में कुछ तो डीप, तू fucking ध्यान दे, कितने लोग के घर चल रहे हैं मेरे नाम पे. Maybe like a subliminal, right? क्योंकि बहुत लोग स्टैन का नाम लेके या फिर you know क्या बोलते हैं उसके बारे में कुछ ऐसे न्यूज फैला के, मे बी पीपल आर टेकिंग क्लाउड. एंड आई एक्चुअली सॉ हिज इंस्टा लाइव when he came live on Instagram, and he was quite pissed off. He was like कि भाई लोग कुछ भी बोले पड़े यार, मैं मतलब यहाँ कोई लोग आते कुछ भी मेरे बारे में खबर फैला देते हैं, ऑल ऑफ दैट. भाई मैं लाइव इतना आता नहीं भाई, मैं जो बोलना चाहता हूँ ऐसे मेरे बारे में तुम अज्यूम मत करो. मैं जब सामने से कुछ तुम्हें बोल रहा हूँ, देन यू जस्ट take a chill pill and you know listen, take a chill pill and then you confirm it with me. वो उसने क्या बोला था, I was like so, मेरे को हंसी आ गई वो सुन के. He was saying कि लोग ना जज करने में यहाँ पे सब जज है. He was saying यहाँ पे सब जज है, 2 मिनट में सब लोग एक दूसरे को जज कर लेते हैं. I was like हाँ सही बोला, ये तो गलत नहीं बोला इसने. That was really he has a very unique personality. Like मैंने लास्ट टाइम बोला था जब वटा का रिएक्शन दिया था, मैंने कहा था कि मतलब आई फील वेरी इंट्रीग्ड लुकिंग एट हिम बिकॉज मेरी पर्सनालिटी एकदम ऑपोजिट है स्टैन की पर्सनालिटी से. तो मुझे बहुत ही एक इंटरेस्ट आता है, एक वो होता है, एक इंट्रीग होता है कि
ओ माय गॉड, ऐसे भी मतलब इतने डायरेक्ट बोलने वाले लोग होते हैं, विच इज़ ग्रेट. यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स. इंसान को कुछ नहीं दिख रहा है पैसे. सो दिस हुक वाज ग्रेट. तुम पूरी जिंदगी भर ढूंढोगे यहाँ पे कौन है रियल. तू भी एक इंसान, मैं भी एक इंसान, इसलिए होता है फील. अपन सबके है एक एनर्जी जिसको बोलते हैं अपन रूह और दिल. अमेजिंग. हार्ट एंड सोल, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैं करता डील. यस. रोता नहीं मैं, रोता दिल. ओह, नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी फील, बिकॉज यू बिकम नम. देन निकल रहा मैं खा के पिल. या सो बिकमिंग नम बेसिकली. तो खा मत तू किसी का दिल, मैं गॉड को लेके आता फिर, मेरे को मिल या मौत को मिल. यस. मैं लिख रहा कुछ तो डीप, इसलिए सब मेरे फैन है. मैं नहीं कर रहा कुछ, ये सब गॉड के प्लान है. यो, मैं भरोसा करने का क्योंकि तू भी एक इंसान है. मैं बेचना सोच चाहता खुद को. मैं हाँ, ये वाला लाइन मेरे को एक्चुअली ये रेफरेंस समझ नहीं आया था. But okay, but more or less, what a beautiful song. I loved it. Let's move on to the next one, which is called Gender. ये 1 मिनट ही है सिर्फ. I don't know how. Okay, ठीक है, देखते हैं. वो आ गया. देखो देखो वो आ ओ ये हर गाने में होगा. लिख देने क्या मालूम गाय को, हक से मैं बोलूंगा तेरे मुंह पे. बात में कोई याद मेरी बात मेरे आगे की बन गए कैसे क्या तुम लोग गए. कौन मेरे साथ में नहीं आता, नहीं बात मेरी बात मेरे साथ मैंने देखे लशे. सिंपल सी बात बिजी हूँ अबे, देखो ने समझा तो क्या बोलूं. See, here he is mumbling. और क्या करूं मैं, तेरे लवर की चिंगड़ी तो बड़े बड़े ले. हिंदी. So it was just four lines, huh? 5 lines. See, here he was mumbling. म्यूजिक अच्छा था. क्या बोला उसने वो भी देख लेते. 1 मिनट का ही था. So I mean I don't know. Wait. मतलब this is literally one verse. लड़की पे लिखते नहीं क्या मालूम काय को, हक से मैं बोलूँगा तेरे मुंह पे. बात मेरे को याद भी नहीं, बात मेरी आगे की. कैसे तुमको क्या, कैसे तुमको बे, कौन मेरे साथ कौन मेरे नहीं, आता नहीं बात में नहीं, घाट मेरे साथ मैंने देख लिया जेल. ओके, सिंपल सी बात ही बेच, यू आर माई बे. देखो नहीं समझा तो क्या बोलूँ मैं, प्यार करता था तुझे और मैं क्या. ओ ओके, मतलब ये तो टेक्निकली आई वुड से थोड़ी बहुत भड़ास निकाल रहा है. मतलब इट्स लाइक कि मैं गाना, मतलब मैं लिख रहा था, मेरे को भड़ास निकाल रहा था, और फिर एक वर्स लिखने के बाद प्रॉब्ली ही वाज लाइक नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना काफ़ी है. इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इतना काफ़ी है. सो आई थिंक जिसके लिए मैसेज था उसको मिल चुका है लाउड एंड क्लियर. आई एम गेसिंग. हाँ, आई एम गेसिंग. सो I don't know. I mean, I don't know if I should consider this like a song also fully. Maybe like a snippet. Maybe like a snippet. I mean, what's your take on this? What's your take on this? It's like literally 1 minute. तो ये playlist में add करके भी कोई फायदा नहीं है. मतलब इंसान तो I'm definitely adding to my playlist, but I don't know how, like gender. मतलब डाल दिया. It's okay. Because the next one is fuck love. तो I am guessing कि gender में मतलब it's like a continuation maybe. It's like a continuation maybe. Let's listen to the third one. Oh, this is even more mumbling. The beat.
देखो मेरे घर से जब मेरे तू मेरे बारे से गाना मेरे समझ से कभी नहीं तू His voice. समझ से कभी नहीं मेरे समझ से कभी नहीं तू मेरे समझ से कभी नहीं तू या मेरे पास मेरे फोन है मेरे पास रहेगा मैंने दी मेरे कभी नहीं से मेरे कभी नहीं पास करती कभी नहीं Hey, listen up, baby girl. Wow, हाँ मैं देखो तेरे से देख प्यार करूँ लेकिन तू मुझसे कभी नहीं It's a mix of तेरे both. तेरे लिए चार करूँ लेकिन तू सर में अभी नहीं तुझे नहीं अभी नहीं कभी नहीं प्यार की देख चाहत तो छोड़ दूर की बात बचो मत मेरे दिल तेरे पास मेरे शीशे मत मेरा दिल मेरे तेरे पास है shit. I love you, boo. Fuck you. I know. This is a very gritty song. The piano. I love you, bitch. Fuck yourself. She said you're gonna want my The voice. Can I just say? एक मिनट पीछे चलता है. First लो ये this piano. I love piano instrumental whenever it plays. When I love this beat. I love this. And here, I don't think I've ever heard Stan doing this voice. This voice. I've never heard. This is the first time I'm hearing him. First time I'm hearing him do this sound. First time I'm hearing him do this sound. I love this beat. ये वाला beat, I think it's very, I don't know, it sounded very gritty to me. This particular song, of course, the song is also called Fuck Love, but it was so freaking gritty. And this is the most unique part of the song. The sound of his. And then उसका voice change हो जाता है. So पहले बार जब वो ये hook गा रहा है, then he's literally mumbling a lot, like he's eating his words. Second time when he's doing this hook, you can sort of hear the words, but the third time when he, with the autotune when he's rapping, then so I like the variation. मतलब there are like 3 steps to this song. ठीक है? I've never heard him make this kind of sound. Seriously. And then ahead. So यहाँ पे you can clearly like make out what he's saying. So, but I want to go through the lyrics, obviously. Age restricted, yes, of course. और यहाँ पे उसने नहीं दिया. यहाँ पे उसने ये नहीं दिया. Hook नहीं दिया. ठीक है. और this is an age restricted video based on community guidelines because गाने का नाम ऐसा है इसीलिए. Is it because of that? Maybe, I guess. Anyway, but here he has not no. मैं देख रही थी नीचे कमेंट सेक्शन में किसी ने डिकोड किया है कि नहीं स्टार्टिंग का वर्स, किसी ने डिकोड किया है कि नहीं स्टार्टिंग का वर्स, बट इट्स डेफिनेटली लाइक अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग.
It's definitely like a heartbreak song, and it's definitely I think he's talking from personal experience. For me, I don't really want to comment on the lyrics because मुझे पूरे lyrics जब तक मुझे proper को lyric video मिलेगा नहीं, I really cannot comment. But from what I can, जितना भी मैं समझ पाई, it's definitely a heartbreak song. But and it sounds gritty. For me here, the music takes the cake because जब वो beat drop हो रहा है ना, the bass is very very high. The bass is very very high. मतलब ये गाड़ी वगैरह या फिर you know एम्पलीफायर या वूफर के साथ बजाओगे तो वो बेस का जो वो साउंड आएगा ना, मतलब you know the furniture is going to vibrate basically. So very very different song. Again, once again, this is what, so जब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि स्टैन के गाने से ना मुझे पता नहीं कुछ भी हो सकता है, this is an example of that. I was not expecting something like this जहाँ पे एकदम ही उसका वॉइस मैंने पहली बार सुना. अगर उसने एटलीस्ट आई फील कुछ कुछ गाने ही हैं जो अभी तक स्टैन के मैंने सुने नहीं होंगे. मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स आई हैव लिसन टू, बट स्टार्टिंग के मतलब तड़ी पार से लेके तो मैंने आई थिंक सारे ही सुन लिए. बट उसके पहले के लाइक वटा से मैंने स्टार्ट किया और उसके आई थिंक बाद 2-3 गाने जो मैंने नहीं सुने. बट मोस्ट ऑफ हिज डिस्कोग्राफी आई हैव लिसन टू. एंड आप लोगों ने मुझे वटा के रिएक्शन में बोला था कि उसका चैनल डिलीट हो गया था. देयर वर मोर सॉन्ग्स बट YouTube sort of like you know deleted the channel. So because आप उसमें like गाली गलौज नहीं कर सकते थे and you know community guidelines basically. This video is also like age restricted because I think it's because of the name of the this thing, क्या बोलते हैं, name of the song, maybe because of that. So yes, very interesting song. So this is what I want from the album. See, नॉर्मल जिसका जैसा वाइब है ना, मुझे वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैसी रहती है. तो स्टैन से मुझे हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे कुछ अलग ही सुनने को मिलेगा. शायद मैंने कभी सुना ना हो, स्टार्टिंग में सुन के मुझे थोड़ा सा लगे कि ओके फाइन, ये थोड़ा अलग है, एंड मुझे शायद 2-3 बार और सुनना पड़ेगा, you know, because that exactly happened to me with Broke is a Joke. मुझे स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, I liked the song, but after like couple of listens I was like, dude, I am in love with the song. It's one of my most repeatedly played MC Stan songs, Broke is a Joke, really. So yeah, let's move on to Pitch. ये भी age restricted है क्या? हाँ, इसमें दिया है क्या? नहीं, ये नहीं है age restricted. Okay, let's see. This thing, I just want to point out, ये एक common theme मेरे को दिखा स्टैन के हर गाने में, the alap thing with the auto tune that I'm seeing him use in all of the songs, most of his songs. Like that is a very prominent thing, which is his signature, I feel. Huh? थोड़े से पैसे के लिए तू बने बेच, मालूम था मेरे को सब पैसे का ट्रिक. मेरे को जी पहले की केस तेरी कसम बुआ में करेला में सांस बने रखा था, शादी थी फेक, सोच के सकती तू करने का चीट. याद कर जरा अपने पहले के दिन, भी करने के फेल. एक दिन तेरे साथ भी होएगा सेम सीन, कर्मा पे बिलीव करो जरा चिल. कर गया क्या हम लोगों का दिल, आर्टलेस क्यों बन रहे मूव ऑन का सीन. एक भी हो में से मत कर यकीन, ट्राई कर मेरे को अगर लग रहा था थिंग, किसको ने बोला था करना सेटिंग, और रोदी बोली वो करना सेटिंग. मालूम नहीं कैसे तू पहनती मैचिंग, कॉलर दम है लेकिन कर रहा बैटिंग. आई फील के राइमिंग तो कर रहा अभी, यार मेरे को कौन ऐसे प्यारे ना भी, फिर भी रखा तुमको मैंने दिल के करी. रिलेशन में आने का सोचा भी नहीं, दिल मेरा टूटने से रोगा भी नहीं. प्रेम करा तुमने मेरे पे तोड़ा भी नहीं, प्यार करती तू मुझसे लौड़ा भी नहीं. हाथ में किसी तुमने जोड़ा भी नहीं, बीच में से देखो मैंने जोड़ा भी नहीं. मेरे को किस पे अभी तोड़ा भी नहीं, सब मेरे को पूछ रहे ले सो रहा कि नहीं. अभी तक किसको मैंने बोला भी नहीं, आज रखा तुमको मैंने खोला भी नहीं. दूसरे के साथ मेरे को क्यों करे रिच, थोड़े से पैसे के लिए तू बने बेच, मालूम था मेरे को सब पैसे का ट्रिप. याद है मेरे को जी पहले की केस, तेरी कसम बुआ में करेला में सांस बने रखा था, शादी थी फेक, सोच कर सकती तू करने का चीट. याद कर जरा अपने पहले के दिन, कुछ नहीं करा अभी करने के फेल. कॉल करा मैंने तुमको मारा बिजी, दोस्त लोग बोल रहे ले आई जौली, छोड़ डाला अच्छा हुआ 12 की थी. दुआ सिर्फ निकलती दिल से मेरी, आज मेरे को देखने को एडी हो रही. एक अकाउंट बना के जडिंग ले रही, लेके गया डेट पे तुमको माउंट मेरी. बेस्ट फ्रेंड ढूंढती थी गलती मेरी,
छोड़ डाला मैंने सब डिसीजन सिर पे, ट्रस्ट कभी नहीं करने वाला वापस सिर पे। अकेला मैं घूमने का सब मुझको देखते, लेकिन तुमको घूमने का मैं हर एक रेट पे। ऐसे कैसे लड़की लोगों लेके जा रहे ट्रिप पे, मन में सब बोलते कोई बोलता नहीं फेस पे। रुको जरा वैसे कुछ लगे ड्रेस पे, 8 बजे रेडी हो गए आए तुम नहीं पे, बात नहीं करने के ज्यादा फोन टेक्स्ट पे। कुछ नहीं बोला मैंने फेंका उसको बेड पे, रेडी हो गई वो मेरा कलेक्शन देख के, खड़ा हुआ मेरा उसको साड़ी में देख के। कॉन्शियस माइंड बोला खाएंगे देखो बेच के, रोने का तू और वो जाने की देख के, मर गएगा तू और वो आएंगे नहीं देखेंगे। मतलब ये तो पूरा उसने अपना दुखड़ा गा दिया। हिंदी हिंदी यो मातृभाषा, you know, I was right. Fuck love और bitch almost similar है. हिंदी 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 Okay. I am telling you, ये तो like I said पूरा अपना मतलब भड़ास निकाल दिया. I'm telling you, वो पहला गाना और ये दूसरा गाना, ये I think वो वाला गाना लिख के ना उसने बोला नहीं 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 let me, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ and then I'm gonna be like अब मैं प्रॉपरली अपनी भड़ास निकालूंगा in a very calm composed manner. मतलब he didn't hold back. It's like he gave his full love story to us sort of. And I जैसे मैंने पहले ही बोला, जिसको मैसेज जाना है इस गाने का उसको तो पहुंच गया है, उसको तो पहुंच गया है. So yeah, so she left him for someone else because of money. He didn't have enough money and stuff. Probably the other guy had, which is really sad. Now of course she would be like okay, मतलब जैसे बोला ना अब मेरे को देखने के लिए हो रही है येड़ी. हाँ तो she's getting mad. She wants just a glimpse of me, and she's getting mad just to get a glimpse of me. So that's very interesting. That's very interesting. Let's just go through the song lyrics. हाँ क्यों करी ditch? वही है. I like how the song है. क्यों करा तुमने ditch? हाँ थोड़े से पैसे के लिए तू क्यों बनी बियाच? मालूम था मेरे को ये सब पैसे का ट्रिप. And I liked how he so that in the title track इंसान बोला ना अब आजकल सबको पैसा ही चाहिए या फिर फेम चाहिए. So that connects with that line also connects sort of with his love life, his tragic love life before. Not really love life, अभी तो I'm guessing he's not dating anyone. याद है मेरे को आज भी पहले का kiss, the first kiss. तेरी कसम बुआ मैं करेला मिस. आसपास नहीं रखा शादी थी आसपास, आस पे नहीं रखा था शादी थी फिक्स. सोच कैसे सकती तू करने का चीट. सो शी चीटेड ऑन हिम बेसिकली. ऐसा भी नहीं कि मतलब ब्रेकअप किया एंड देन शी वेंट. दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग नाउ बिकॉज ही लिटरली सेड यू नो दैट मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझ पे चीट करोगी. सो आई थिंक दिस whoever she is probably was two timing him, right? याद कर जरा अपने पहले के दिन, फोर्स नहीं करा फिर भी करने की फील. Wow, like the dude didn't hold back. So the hook says it all. The hook says it all. It's pretty direct. मतलब इसमें कोई deep dive करने की बात नहीं है. जो भी है उसने एकदम clearly to the point बोला है. एक दिन तेरे साथ ही हो गया same. हाँ, so he is like karma. This is what I also believe in, that karma will bite you back. आप जैसा किसी के बारे में बुरा सोचोगे आपके या आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड जो भी है उनके साथ भी बुरा होगा. सो आई टोटली बिलीव इन कर्मा. आई डू बिलीव इन कर्मा. सो कर्मा पे बिलीव करो जरा चिल. यस, किधर गए क्या मालूम लोगों के दिल. हार्टलेस. दैट गोज विद द पोस्टर ऑल्सो, गोज विद the title. So title track I feel is like an overall thing because उसने बहुत generally बात किया है, and then I think you see a breakdown of everything कि जो उसने टाइटल ट्रैक पे बोला. आई थिंक नाउ इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ थिंग्स. जैसे एक पार्ट हो गया लव लाइफ का, एंड आई एम गेसिंग क्योंकि हाउ टू हेट नेक्स्ट गाना है, हाउ टू हेट. तो अब सो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज हेटर्स इन दैट. गाना सुनेंगे फिर पता चलेगा. तो मुझे लगता है कि जैसे इंसान वॉज लाइक अ जेनरिक सॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, एंड देन उसके सब पार्ट्स आर ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स. That's what I feel the album is about. मतलब अब एल्बम का थीम मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है. Like how people change
इंसान कैसे बदल जाता है, चाहे वो एक अगर रिलेशनशिप में हो तो कभी पैसों के लिए किसी को मतलब चीट करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, देन जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप फेमस हो जाते हो, तब यू फील सॉरी और तो आप वापस रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हो। तो इंसान का वो मतलब वो दोगलापन बेसिकली या हिपोक्रेसी आप बोल सकते हो। देन इंसान जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग तमाशा देख रहे हैं, आई एम गेसिंग हाउ टू हेट विल सॉर्ट ऑफ मे बी एड्रेस इन दैट, लेट्स सी, आई एम रियली इंट्रिग टू सी बिकॉज उसका टाइटल मुझे बहुत ही इंट्रिगिंग लगा। देन मालूम नहीं कैसे तू मैचिंग बॉलर था मैं, लेकिन करा बैटिंग, महफिल की राइमिंग तू करे अभी, प्यार मेरे को कौन नहीं सिर्फ प्यारे नबी, फिर भी रखा तुमको मैंने दिल के करीब, रिलेशन में आने का सोचा भी नहीं, राइट, दिल मेरा टूटने से रोका भी नहीं। He suffered heartbreak, I'm guessing. That's why I think he has become more ruthless. रहम करा तुमने मेरे पास, मेरे पे थोड़ा भी नहीं, मेरे पे थोड़ा भी रहम नहीं करा, प्यार करती तो मुझसे थोड़ा भी नहीं तो बिल्कुल नहीं करती थी, हाथ में किसके सामने जोड़ा भी नहीं, में तेरे को मैंने छोड़ा भी नहीं, ट्रस्ट मेरे को किसी पे अब थोड़ा भी नहीं, उसने बोला बिकॉज फ्रॉम एक्सपीरियंस अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। सो विच इज़ इन अ वे सैड ऑल्सो बिकॉज एक होता है ना कभी कभी आपका एक्सपीरियंस ही इतना खराब होता है रिलेशनशिप में कि उसके बाद आप किसी को चांस भी नहीं देना चाहते। मतलब अगर कोई एक जेन्युइनली आपको सच में पसंद करता हो, you don't want to give a chance to that other person. Have you experienced that? हाँ, किस किस का दिल टूटा है इतनी भयंकर तरीके से, प्लीज बताए या फिर ना बताए। I mean, it would be very traumatizing to even type it out, I feel. क्यों करा डिच, देन हुक आ गया, सेकंड वर्स, कॉल करा मैंने तुमको, आ रहा बिजी, दोस्त लोग बोल रहे हैं आई जवली व्हाट डज दैट मीन, ये वर्ड का मतलब नहीं पड़ा, छोड़ना अच्छा तूने 12 की थी, दुआ सिर्फ निकलती दिल से मेरी, आज मेरे को देखने को येड़ी हो रही, शी इज गेटिंग क्रेजी जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ मी, फेक अकाउंट बना के झापिंग ले रही, व्हाट डज दैट मीन, वो जब मैं सुना मेरे को तभी भी नहीं समझ आया। लेके गया डेट पे तुमको माउंट मेरी, बेस्ट फ्रेंड ढूंढती थी गलती मेरी, छोड़ डाला मैंने सब पे डिसीजन तेरे पे, ट्रस्ट कभी नहीं करने वाला वापस तेरे पे, यस अकेला मैं घूमूंगा समूह को देखते, लेकिन तुमको घूमने का फिर भी RX 100 पे क्या लड़की लोगों को लेके जा रहा डेट पे, ऐसे कैसे लड़की लोगों को लेके जा रहा डेट पे, मन में सब बोलते हैं कोई बोलता नहीं फेस पे, रुक जा रहा वैसे ही कुछ लग रहा ड्रेस पे, 8 बजे रेडी होके आए तुम नेक्स्ट डे, बात नहीं करने का ज़्यादा अपन टेक्स्ट पे, कुछ नहीं बोला मैंने, फेंका उसको बेड पे, येड़े हो गए वो मेरा कलेक्शंस देख के, खड़ा हुआ मेरा, दिस इज लाइक प्रिटी एक्सप्लिसिट, हाँ, उसको साड़ी में देख के, कॉन्शियस माइंड बोला भाई देखो बेच के, रोने का तू और वो जाने की देख के, मर जाएगा तू एक दिन और वो आएगी नहीं देखने। Yes, I'm talking about you, bitch. No other shit. Yeah, the lyrics are pretty explicit, but I mean he did not have from Stan. This is what I expect. मतलब वो मेरे दिमाग में घूमता है कि हाँ he'll be very direct. He's not gonna hold back. जो उसको बोलना है उसने बोल दिया है, and you can sort of sense the betrayal in his voice also. कि दुख तो बंदे को हुआ, दुख तो बंदे को हुआ। So I feel these two songs, the third and the fourth track, are sort of similar beats. मैं बोलूँगी नहीं कि बहुत similar लगे, but somewhat similar लगे मुझे, somewhat similar लगे। Overall, I vibe to the song. But I think अब तक मुझे इंसान जो first song सुना मैंने, I think that has been the best track so far for me. So let's now listen to How to Hate. Now this song has Raftaar. I'm really excited to see if Raftaar कभी मतलब वो मेलोडी वाला रैप है कि रफ्तार is actually like rap. That'll be very very interesting to see, and let's listen to the song. I don't know how to hate, though. Oh, I don't know how to hate. Okay. आ गया देखो वो आ गया,
तुझ्या मादीला जाऊन आलो आताच मी तुझी सारखी तुझ्या आयटम मराठी में this I will not understand. ब्रो में हट कुछ हट करी Dream for my shawty, I put things on my mommy I need leave for my uncle घर पे बैठ के बज रही street हम लोग किस्मत से मिले भाव का घारी है गज करन फीमेल चरपटी हो गई चेहरे पे तिले सना पूछे किधर है तुम्हें बोला दिल में एक बार बोलता मैं बोलता नहीं फिर से क्या बोलते रफ्ता पे गर्दिश में मिलते कब सारे सामने से चलो अपन हिलते और प्यार मेरा कभी तो भी मिलते मेरे शब्द बन वाकड़ा नहीं कर सकता कौन कितनी बार बोले तेको मत कर फोन बेकाई तेरे तेको तेरे हो मिलो क्या मतलब इसका रे सिंपल है ब्रो तुझे ऐसा हो मैं बदरी में बना रहा मैं लेडी होम इसको दे रहा मैं सैलरी एक जन में बन रही कैलरी मैं देखता मैं दोस्तों में बेनिफिट मेहनत को देख के ये बोल रहे लव वाई मिल लव मेरे को कर जी मैं बात नहीं करेला पहले की हंसी तो उड़ गई चेहरे की मेरे को नहीं मालूम था ब्रो मेरे दोस्तों की गान मुझसे क्यों चलने की और ये प्लेलिस्ट में मेरे में स्वीट करता ना फिर क्या बोलते तुझे मार लो तस्मी तुझे सारी की तुझे आइटम बन कर कटी अरे ताड़ तो छोड़ तुझा बहुत सब उसने ब्रो मेरे को हट कुछ हट करी Dream for my shawty, I put things on my mommy I need leave for my uncle घर पे बैठ के बज रही street घर पे ही बैठा रहूं घर से घर को चलाना ये ब्लेसिंग है Okay. एक भाई को घर है बनाना एक भाई के घर में है ब्लेसिंग की तेरी मैं ना ये सोचूं तो सोचेगा कौन रातों को बातें ये खाती है अपनों पे वक्त भी कम है लाइफ ना पीछे को जाती है मैंने भी देखी हर घड़ी मैंने भी देखी हथकड़ी हो गए वो गुम जो थे साथ खड़े जैसे ही बातों की हद बढ़ी हड़बड़ में हो गई फिर गड़बड़ी और मेरी सनम भी लड़ पड़ी एडी पे वैनम सी चढ़ पड़ी बदन पे चिपका है बरबरी फरवरी जैसी है सर्दी दिलों में ऊपर ना मुंह पर ये रहते बिल्लों में डल्ले भी आजकल है मिलते दलों में आते तपाते ये चिता किलों पे गर्दिश में मिल लेंगे गर्दिश में दिल देंगे गर्दिश में भाई तो भाई ही बिल देंगे आपको छिल देंगे शॉट तो किल देंगे चाटे में भाड़ेंगे कांटे से सिल देंगे जिसका साथ दिया दिल का मास दिया मुझको फास लिया तुझे मादीला जाऊन आलो आताच मी तुझी सारखी तुझी आयटम पण कर कटी अरे ताड़ तो अब ये हुक का मीनिंग मुझे नहीं पता चलेगा हट करी Dream for my shawty, I put things on my mommy I need leave for my uncle घर पे बैठ के बज रही street ये जो ये स्टार्टिंग और एंडिंग म्यूजिक डाला है ना स्टैन ने अपने हर गाने में इट्स फ्रिकन अमेजिंग Yeah, eyes on talk me to the mandal, you know what I'm saying. B-Town, baby, you know I'm crazy, you know I'm baby. Scouts, motherfucker, I got you in the club. गहिरा होइटला फ्रीस्टाइल रुके सुनने वाली बातें हम माने क्या अगर इस गाने में लिखा नहीं रहता ना फीचरिंग रफ्तार आई वुड हैव नेवर गेस दैट इट्स हिम मतलब बिकॉज आई ऑनेस्टली आई एम यूज्ड टू सच अ डिफरेंट वॉइस ऑफ रफ्तार दैट अगर नहीं लिखा होता ना फीचरिंग गेस हु I would not have been able to guess. I swear I would not have been able to guess. Though, can I tell you my honest opinion? जब ये गाना सुन रही थी, because Stan's rap was so good, I was like, काश ये गाना इसका हुक जो है ये मेलोडी में रखता, ठीक है, बट ये गाने का पूरा गाना मेलोडी में नहीं होना चाहिए था. Like his rap, because I loved his flow in this song. I loved his flow in this song, and it would have been so cool ना. मतलब just मेरा opinion है, सुन लो कि जो हुक उसने मराठी में बोला वो प्रॉपर जैसा है वैसा. बाकी जब उसका वर्स आता है, then there is no auto-tune. Okay, he just does his verse just as it is. Okay, and it would have sounded so good. And then Raftar's verse, the way just it is, because that is something you would not have expected. कि रफ्तार का वर्स ऑटोट्यून में है या जो भी ये मेलोडी में है, ठीक है, बट स्टैन का वर्स नहीं है, बट उससे हुक हो. बिकॉज मुझे उसका फ्लो बहुत अच्छा लगा इस गाने में. आई रियली लाइक हिज फ्लो इन दिस सॉन्ग. सो आई वाज विशिंग, जब मैं सुन रही थी आई वाज लाइक, ओ शिट, काश इसमें ऑटोट्यून नहीं होता. बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन गाइस, दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, बिकॉज आई फील द काइंड ऑफ लिरिक्स दैट आई वाज एबल टू मेक आउट, आई फील वो पंच उसमें ज्यादा आता. आपको क्या लगता है? let me know, but this is just my opinion, because musicality taste is very subjective. So we'll go through the lyrics. अगर दिया है तो हाँ दिया है. So this thing, this entire hook in Marathi, I think I like the tune of that. Okay, and उसके बाद जब स्टैन का वर्स आता है, I'm like,
काश ये, because I loved his flow. I loved his flow. I was like, काश ये just without the auto tune होता. हम लोग किस्मत से मिले, भाव काय को खा रही. ये चक्कर फीमेल, चेहरे पट्टी हो रही, चेहरे पे दिल है. साना पूछ किधर है तू, मैं बोली दिल में. साना पूछी किधर है तू, मैं बोला दिल में. ओके, एक बार अच्छा बोलता मैं, फिर बोलता नहीं फिर से. ठीक है, एक बार आज या सच. आई थिंक एक बार सच बोलता ना. क्या बोलते रफ्तार भाई, गर्दिश में मिलते, कौसर सामने, चलो अपन हिलते, मैं और प्यार मेरा कभी तो भी मिलते, मेरा शैतान पर मकरा नहीं कर सकता हूँ. कितनी बार बोलूँ तेको, मत कर फोन, फेक हाइप दे रहे तेको तेरे होमीज लोग. क्या मतलब है इसका? अरे सिंपल है ब्रो. तुझे आईचा बॉक, तुझे आईचा बॉक. आई थिंक दैट्स इन मराठी. और उसको दे रहा मैं सैलरी, एक जॉइंट में बर्न हो रही कैलोरीज. मैं देख रही दोस्तों में बेनिफिट. आई नो. So this is again reminding me of what he sang in Tadik Parki. His homies only sort of dissed him. His homies only dissed him when he was put into the prison. So वही मेहनत को देख के बोलते लक. आई थिंक ये वाली लाइंस मुझे सबसे अच्छी लगी थी, जहाँ पे वो बोल रहा था कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे दोस्त ही मेरे से जेलस फील करेंगे. मैंने आई एम इन लव, मेरे को गरज नहीं, मैं बात नहीं कर रहा पहले की, हंसी तो उड़ गई गैली चेहरे की. मेरे को नहीं मालूम था ब्रो मेरे दोस्त लोग कान मुझसे क्यों जलने की. या दे वर नॉट योर रियल फ्रेंड्स. दैट्स व्हाट इट इज. आई लुक एट दिस कवाली प्लेलिस्ट में मेरी मैं स्पिट करता नगमा. फिर क्या बोलता गंजेड़ी. ये इसीलिए मुझे ना मतलब आई वाज लाइक, बिकॉज आई वाज लाइक काश ये, दिस जस्ट माय ओपिनियन गाइस, हो ही सकता है ना, थोड़ा अलग ओपिनियन तो हो ही सकता है. आई डेफिनेटली वांट टू नो आपको ये गाना कैसा लगा. ओके रफ्तार, दोस्तों आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरे को तो अगर नहीं लिखा होता ना कि रफ्तार है, मैं कभी गैस ही नहीं कर पाती. घर पे बैठा रहो, घर से घर को चलाना ये ब्लेसिंग है मेरी. यस, एक भाई को घर है बनाना, मेरे भाई के घर में है ब्लेसिंग की देरी. ना ये सोचूं तो सोचेगा कौन रातों को बातें खाती है. ही तो स्पिट्स फायर मैन. आई लव हिज फ्लो रफ्तार. बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, वही मैं सोच रही थी कि स्टैन के गाने में रफ्तार है तो आई डोंट नो कैसा गाना बनेगा, बट इट वाज क्वाइट नाइस. जैसी बातों की हद बढ़ में हो गई फिर गद बढ़ी. दीज आर द लाइन्स. आई लाइक द वर्ड प्ले, मतलब जिस तरह से उसने राइम किया है, बट आई डोंट रियली गेट द मीनिंग. आप बता देना प्लीज. हाँ, आई एम नॉट लाइक अ हार्डकोर हिप हॉप लिसनर ना, दैट्स वाई. बदन पे चिपका है बर्बरी, फ्लैक्स. फेब्रुअरी जैसी सर्दी दिलों में, फेब्रुअरी जैसी ही सर्दी दिलों में. नाइस. ऊपर ने मूड पर ये रखते बिलों में. ऊपर ना मूड पर ये रहते बिलों में. ऊपर ना मुंह पर ये रहते अपने बिल में घुस जाते हैं. करेक्ट. पहले भी आजकल है मिलते दालों में. हार्ट पाते हैं चीता के लौ में. गर्दिश में मिल लेंगे. यस, गर्दिश में दिल देंगे. गर्दिश में भाई तो भाई ही बिल देंगे. यस. ऑफ को छील देंगे. यस. शॉट को किल देंगे. See, these are, I like the word play here. I really like it. You know, तो मतलब ऑफ को छील देंगे, शॉट को किल देंगे. I like that. These are good word plays. चंटे में फाड़ेंगे, कांटे से सील देंगे. वाओ. जिसका साथ दिया दिल का मांस दिया,
मुझको फास लिया, स्टैनी घास लिया, ओह स्टैनी घास लिया. Okay, Raftaar, I'm shook in the best possible way. I was honestly, I did not know what to expect. जैसे मैं पहले भी, I repeated it many times, I did not know what to expect, but I fondly got surprised with this song. I fondly got surprised with this song. So let's move on to the next one. Then I will give you, because 6th तक आज मैं सुनूंगी, that's part 1. Part 2 of course will be from 7th till the 11th song. एंड मैं एटलीस्ट पहले 6 गाने का आपको फाइनल माई प्रेफरेंशियल रैंकिंग आई विल गिव यू. लेट मी नो योर्स. ओके ओके. वेट, ढोलक. देखो या देखो वो आ गया. चोदना कम चिल्लाना ज्यादा है, मैं बस्ती का हस्ती, मैं मालूम का किधर से आता, पीछाऊं बेबी, मैं तुम लोगों को अच्छा सिखा लाई, पीछाऊं, आने दो पुणे. बेटी, ये लंड का बाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर. 1 मिनट, ये फिर से स्टार्ट होगा ये गाना. अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हाउ ही हैज इंटीग्रेटेड द ढोलक. लव इट, लव दैट. अभी तो गाना तो मतलब मैं तो म्यूजिकलिटी के हिसाब से बोल रही हूँ. सो डिफरेंट, सो डिफरेंट. ओके देखो या गाइस, वो आ गया. Stan Army. मैं बस्ती का हस्ती, मैं मालूम का किधर से आता, पीछाऊं बेबी, मैं तुम लोगों को अच्छा सिखा लाई, भाई आने दो बेटी, आने दो बेटी. ये लंड का बाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को, ये भड़वे कर रहे नकली शो, मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है, तू रैपर नहीं डांसर, मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है. सफर तू शायद से एक्टर है, मैं जाने का दोस्तों के मैटर में, तेको मारने का मन भी नहीं कर रेला, सड़ेला कैंसर है तू, तेको इसलिए मैं लेके नहीं जाता ब्रो किधर भी, क्योंकि ब्रो फचड़े तू. ये अपन किधर से आ रहे हैं किधर कुछ आ रहे, ये बस्ती में पका रे, ये लंड के बाल कोई लंड पे मारे, आस्तानी बोले फकाटे, लेके जाएगा तेको मैं भगा के, तेरे बाजू वाले मेरे गाने बजाते, मेरे को मालूम ना एड़ कैसा भगाते फकाटे, मैं एक्टर का लड़का नहीं आयला, मैं बस्ती से, मेरे को बोलते बस्ती का हस्ती, मैं गरीबी से आयला ब्रो, बॉम्बे की पब्लिक में बोलने की जान देना बच्ची, मेरे गाने पे कर हाथ नहीं उड़ती, मेरे शो पे नहीं वर्ड्स की कर दी, मेरी मालूम ना किधर पर चलती, मेरे दोस्त लगी खान का चलती, चिल्लाना ज्यादा है, मैं बस्ती का हस्ती, Dude, what a vibe. इधर से आता, पीछाऊं बेबी, इसका तो वीडियो बनना चाहिए. सिखारे लाई, भाई आने दो बेटी, ये लंड का बाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को, ये भड़वे कर रहे नकली शो, मैंने बोला खुद को अल्लाह तेरा देख, where's my chase, where my chase, now they say you are my name, fuck that fame, use your brain, stay in your lane, I was on the same, nobody know my pain, मैं बोल रहा सच, मेरे सच से बच, मैं बोल रहा हिंदी, मेरी शॉर्टी जब लगाती बिंदी, मेरे को गोली नहीं खाने का नींद की, मैं क्लब में जब कर रहा एंट्री, जय सच्ची में हो रही एंट्री, मैं झाड़ पे कभी चढ़ता नहीं पंची, तेरा 3 दिन जलाएगा वन पीस, मैंने घर दिखाई वो मेरी गलती, तूने चौकी में खा डाली पलटी, तुमको गांड होने आने की नहीं, तब इससे कर रहा मैं रैप, मैं दे रहा स्लैप, मेरा फैट तेरी जब करा सोच पहले मेरे तक पहुंची है, रांडा सब बोल रहे वीडियो में लो, मैं पूरे में बसता ना ब्रो, आई साउंड टाइप में कर चिल्लाना जा रहा, यू नो मैं मालूम का किधर से आता, तेरी बेबी, मैं तुम लोगों को अच्छा सिखा लाई, भाई आने दो बेटी, ये लंड का बाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को, ये भड़वे कर रहे नकली शो. This was the biggest surprise, this song for me right now. देखो Oh, he has आ arrived. गया. Fantastic, just. तो मेरा जो विश था वो पूरा हुआ. जब एल्बम आने से पहले मैं बोला था आई वांट अ मिक्स ऑफ बोथ हिज मम्बल एंड हिज एक्चुअल रैप, एंड दिस सॉन्ग गेव मी दैट. दिस सॉन्ग गेव, मतलब इस सॉन्ग में तो मुझे उसका जो एक वो था ना प्रॉपर जो एक्चुअल हिप हॉप वाला जो फील है, एक तो वो आया,
हाँ, जो उसके पुराने गानों में था, without the mumble, so that wish got true. But the beats of the song, मतलब बस्ती का हस्ती, it talks about his roots and stuff like that, and also it's like a diss song to the haters, and also it has such an authentic raw feel, मतलब एक वो देसी पना है इस गाने में, that I love so much. That use of ढोलक was genius. लिरिक्स दिया है क्या? This song is absolutely fire. ये गाना मतलब incredible. I am totally like shook with this song. This song is brilliant. Just the composition, the arrangement, his rap, the swag, his cadence, his flow, and that dholak. That dholak was absolutely a genius addition. क्या feel है, कहाँ पे वो stop होता है. Beat arrangement is incredible of this song. मैंने first time सुना, first time ever. This is what I wanted from the album. Something जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, वो मुझे स्टैन के एल्बम से ही सुनने को मिलता है. I've never heard like this ढोलक वाला, such a desi wala feel with a very stylish hip hop feel also. It's a blend of both. Okay, we'll just go through the lyrics. I'm from P-Town baby, yes. मैं तुम लोग से अच्छा सीख रहा, मतलब लिटरली हेटर्स को एकदम डायरेक्ट डिस दे दिया यहाँ पे. बस्ती का हस्ती ब्रो बोला ना, मतलब मैं कोई एक्टर का बेटा नहीं, माई रूट्स आर फ्रॉम हियर एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट. ही इज लाइक, yeah, I've come from this is my identity, and he never shies away from talking about the place where he comes from. That's amazing. अगला भाई लोग अभी कल्टी लो, मैं बॉम्बे में बचा एक बच्ची को. यस, इधर फायर हो गए देख, पलटी ब्रो. या मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, ऑल ऑफ दैट. अमीर में हो गया गरीब है फ्लो. रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को. यस, ये कर रहे हैं नकली शो. मैं रैपर नहीं, गैंगस्टर. ओह माय गॉड, स्टैन इज लाइक नॉट होल्डिंग बैक. तू रैपर नहीं, डांसर. I am dead listening to these lines, man. Oh my god. I don't even care किसके लिए बोला. I don't even care. But just ये दो लाइन ही इतनी funny है and awesome है. हमें जाने का दोस्त लोग के मैटर, तुम्हारे का मर भी करेला, सड़ेला कैंसर है तू, देखो इसलिए मैं लेके नहीं जाता ब्रो किधर भी, क्योंकि ब्रो पछाड़ है तू. किधर से आ रहे, किधर को जा रहे, अपनी बस्ती में पका रहे, ब्ला ब्ला ब्ला. नेक्स्ट लाइन में नहीं बोलूंगी, बट आई वाज लाफिंग सो मच इन दैट लाइन. स्टैनी बोले कट है लेके जाए देखो, मैं भागा के ब्ला ब्ला ब्ला. मैं एक्टर का लड़का ने, यस आयला मैं बस्ती से, वेरी मुंबईया, लाइक यू नो, और मे बी आई शुड से पुणे, P-Town, from P-Town, representing the P-Town. Even in Mumbai, like karrela hai, arela hai, jarela hai, like that's the slang language we speak over there. मेरे शोज पे नहीं इज्जत की गर्दी, मेरे को मालूम नहीं किधर कौन चलती. क्यों चलती मेरे दोस्त लोग की क्यों चलती, काय को चलती. Oh man, this was I was enjoying, I was laughing, it was such a vibe. This song is such a dope song, man. Oh my god. मैं बोला खुद को अल्ताफ शेख, कोई टू हिज रियल ले, तू देख, तू तेरा देख. Where my oh man, the swag in the song is absolutely freaking amazing. तू तेरा देख, where my shades. Oh my god. You heard my name, fuck that fame. Use your brain, stay in your lane. अपन दोनों same, nobody knows my pain. Yes. My god.
मैं बोल रहा हिंदी मेरी छोटी जब लगाती बिंदी, मेरे को गोली नहीं खाने का नींद की, मैं क्लब में जब करेला एंट्री, ओ माय गुडनेस। Okay, cool. Chalo, most then the hook and all of that. This song is incredible. I loved this song. He's representing. I'll stop this. He completely represented his hood over here. Completely, like, so proud of it, and that's great. I feel that's great. So this was the surprise package for me. Because इतना सारा सुन के ना, 5 गाने सुन के I was like, चलो ये भी मम्बल ही होगा. But then suddenly, such a desi vibe song. I loved it. Though इन 6 गानों में से I would say my top 3, first is definitely इंसान. वो गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Definitely adding to the playlist. Second is this one, बस्ती का हस्ती. मुझे मजा आ गया ये गाना सुन के. Really मेरे को मतलब just I cannot stop my smile. मुझे मजा आ गया ये गाना सुन के. Honestly guys, I loved it. And the third would be, I think the third for me would be Bitch, because I mean he did not hold back. I think it's because of the lyrics, because he was brutally honest in Bitch. I liked How to Hate, because it was a different sound. It was a different sound for me. Probably it'll take some time for me to get used to that sound. But like I said before कि मुझे अगर ये गाना उस तरह से arrange होता शायद मुझे और पसंद आता. But I think इंसान अब तक का इंसान, बस्ती का हस्ती, and I think Bitch, these 3 songs definitely like were a standout for me. At least 6 में से ये 3 मेरे top 3 definitely है. I don't know what to even tell about gender. That's literally not, I wouldn't even say like verse है. Literally वो एक बार है. 3 bars है उसमें. That's it. Right? That's just a bar. That's a verse and that's it. Anyway, I want to know your thoughts. This was definitely an experience with Stan. I mean, what an ending to this video. बहुत मजा आया बस्ती का हस्ती सुन के, and like, because that's where I've decided to stop, and the rest of this 5 songs will be, part 2. Very, very eager to listen to how it is going to be sounding, because there's one more song which features Ikka, Maa Baap. I'm really, really intrigued to listen to that song. That'll be very interesting to see how him and Ikka, like how they sound together. So yeah, that was the reaction till part 1, till 6 songs of MC Stan's Insan. I want to know your thoughts. आपको कैसा लगा? सारे गाने पसंद है, कुछ पसंद आए, नहीं आए, overall vibe कैसा लगा? And I don't want to compare it with Tadipar, because Tadipar का feel अलग था, and इंसान का पूरा एक जो theme है, it's very, very different. So I think it will be unfair to, really compare. Anyway, आप अपने thoughts बताइए comments में. And yes, with that I will end this video here. I hope you guys enjoyed watching this reaction, and I will see you soon on my next one. Bye bye.